I am Sonali Mahajan and today we are going to discuss about a new topic. I welcome you all in our channel MS Chemistry. Our today's topic is sharp-base asymmetry oxidation. Sharp-base asymmetry oxidation. Sharpless asymmetric oxidation. This reaction is given us by the scientist Carl Bailey Sharpless. In this reaction, we convert allylic alcohol into epoxy alcohol. Secondary or primary allylic alcohol is converted into epoxy alcohol. For this conversion, we must require some reagent. There are 4 types of reagents. First is tertiary butyl peroxide. Second one is titanium tetraisopropoxide. Third one is DET. Fourth one is CH2Cl2 in presence of minus 20 degrees Celsius temperature and 16 hours. Okay. These 4 reagents are used for this reaction. In this reaction, this tertiary butyl peroxide is used for oxidation purpose. This titanium tetraisopropoxide is also known as Sharpless catalyst. Okay. And this one is our main reagent. Main reagent means asymmetric epoxidation reaction is a stereospecific reaction. Means in this reaction, the stereospecific reaction means there is a stereochemistry is defined by this DET. DET is a chiral reagent, means there is plus DET as well as minus DET. If plus DET is present, then the reaction gives one type of product, and if minus DET is present, then another type of product or another type of stereochemistry we have in this product. Okay. This diethyl tartrate, DET means diethyl tartrate. It is prepared by if we have this COOH and OH, tartaric acid. In tartaric acid, if we add ethyl alcohol, then what we get? This hydrogen is replaced by OET. We get COOET. Okay, this OH is as ET. This is called as DET. Okay, this is our main reagent. I already told you that in this reaction there is allylic alcohol. What is meant by allylic then? Allylic means presence of double bond and CH2 and OH. This OH means this alcohol is allylic alcohol. Means there is a unsymmetric unsaturation, then carbon and then OH. It is either like this or like this. Okay, means in reaction they give us this kind of alcohol or this kind of allylic alcohol. In this reaction, what we are going to do, we are just see that in which position the OH is present. OH is at left or OH is at right. From this we can conclude, means in this case what we observe,
this OH means this alcohol is at right side. Okay, and this alcohol is at left side. We have one trick for solving this kind of reaction. If OH is present, position of OH is at right, and if position of OH is at left. If position of OH is right and we give minus dt. If there is minus dt and OH is at right side, then what is our product is above. Product's chemistry is stereochemistry is above. Minus dt right side above product. Then we just have to remember this one, and from this we can conclude another trick. Means if minus dt right above, then right plus dt gives us below stereochemistry. Okay. Likewise, if minus dt and plus dt in case of left, minus dt and plus dt in case of left, here minus dt gives minus dt, left gives below product. Okay. Here plus dt right gives below product, then plus dt left gives above product. Then what is meant by above, below, and what is meant by this stereochemistry? We just say that wedge kind of product and dotted kind of product. Then above and below means dotted. Okay, remember this. Above means wedge and below means dotted. Whenever I said that there is a below product, then we just put our epoxide like this. Okay, and whenever I said above product, then we are just going to draw it like this, above product. Okay, so let us discuss the example. Remember, minus RA, minus LB, minus RA and minus LB. Only from that we are solving this all the kind of examples. Okay. In this case, if dt, I write it in this minus RA plus RB, okay, minus LB and plus LA. If here is a plus dt, then what is our product? This alcohol is at right side, okay, right side plus dt, right side plus dt, the product is below, means the stereochemistry of this product is below. Okay, in this case, if we take minus dt and the product is OH is at left side, minus dt, left side minus dt, product is below, stereochemistry of product is below. Okay, then how can we see that where is the OH, means position of OH? How can we define position of OH? You just, in all example, you just have to look at this point. Okay, you just have to look at this point, means from this point we always see from this point. If we look at this position, then there is OH is present at right side, and if we look at this position and OH is presented in left side. If there is this kind of
if there is this reactant we have, then how can we see? We just have to look from this side. We just have to look from this side, and there is OH is at what? Right side. Okay. If this kind of reactant is present, then we are looking from this side. मीन्स आपको कहाँ देखना है? जहां पर ये जो डबल बॉन्ड की तो जिस कार्बन पे अटैचमेंट है, जिस कार्बन पे इस CH2 की अटैचमेंट है, यहाँ पे इस CH2 की अटैचमेंट इस कार्बन पे, इसलिए हम यही से देखेंगे, ये यहाँ से देखेंगे नहीं, यहाँ पे भी क्या है, इस साइड पे अटैचमेंट है, इसलिए हम इस साइड से देख रहे हैं। यहाँ पे इस साइड पे, इसलिए इस साइड से देख रहे हैं। अगर इस साइड से होंगे थे तो हम देखेंगे। अगर ऐसा है ओके, अगर ऐसा होगा या फिर कुछ भी हो, ऐसा हो, ओके। So in this case OH is at right side, in this case OH is at left side. We just look from the attachment is at this carbon, so we are looking from this carbon. In this case OH is at left side, in this case OH is at, अगर हम ऐसे देखते हैं तो OH किस साइड में आता है? राइट साइड, ओके। यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे ये कार्बन की अटैचमेंट यहाँ पे ना, हम कहाँ से देखें? अबो साइड, and above side we get this OH is at left side, means it is left. Here, if here is a OH is at this and attachment is on this carbon, then we are looking from here, okay. अगर यहाँ से देखते हैं तो ये कहाँ आएगा? वो हमें इस सभी रिएक्शंस में अप्लाई करनी है, ओके। वन बाय वन हम सब एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अभी हमने ये देख लिया ना, तो इसके बाद आप लोग इन वन लुक आप ये रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यही ट्रिक मुझे आपको बतानी है, ओके। ये इस रीडिंग है OH और यहाँ पे रिएजेंट दिए गए -DT, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? सिर्फ DT पे। दे ऑल रिएजेंट्स आर फॉर रेफरेंस और they are not performing any change in this reaction, so we just have to look on titanium isopropoxide, tetraisopropoxide, then CH2 Cl2 -20 degree Celsius and then 16 hours. इस रिएक्शन में ये सभी रिएजेंट में लिख रही हूँ, लेकिन अगले ही अगले एग्जांपल से हम क्या करेंगे? सिर्फ DT लिखेंगे, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ DT लिखेंगे, ओके। सो इन दिस रिएक्शन here is our double bond allylic position. This is our reacting. This is our reacting data, okay. We just have to look on this. So from where we can see? From this side. हम कहाँ से देखेंगे? ये साइड से देखेंगे, ओके। देखते हैं तो OH कहाँ आता है? OH is at right side, right? OH is at right side. राइट साइड है, राइट साइड है, और DET कौन सा दिया है हमें? It is a chiral reagent. Hence it distinguish the stereochemistry. राइट है -GT है, राइट है -GT, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? अबो साइड से। तो हम वो कैसे लिखते हैं? जो दिया है वो पूरा लिख लेते हैं। OH एज इट इज रहेगा,
सिर्फ हमारा क्या बदलने वाला है, इपॉक्साइड। तो यहाँ पे कैसे आएगा, माइनस राइट अबोव। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस second example. In second example, there is plus dt is given. There is plus dt given. Now I am not going to write all this reagent. I just put dt. Okay, because the reaction is based on only dt. That is diethyl tartan. Okay. So what is our trick? If there is plus dt and we have to look the position. For position, alcohol is attached at CH2 and that CH2 is attached at that carbon, and from that carbon we are going to see how the reaction is performed. Means now हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कौन सी साइड में OH आता है। हमें क्या बताया है, OH की पोजीशन, ये R मरियन क्या है, पोजीशन है, OH की पोजीशन। तो अल्कोहल की पोजीशन कौन सी है, अभी इसमें अगर हम देखें अटैचमेंट यहाँ पे, तो यहाँ से हम नीचे से देखेंगे। अगर अटैचमेंट यहाँ पे होती तो हम कहाँ से देखते हैं, ऊपर से। अभी यहाँ पे अटैचमेंट होने से हम क्या देख रहे हैं, क्या पता चल रहा है कि OH कौन सी साइड में है, राइट साइड में। अगर यहाँ होता तो लेफ्ट साइड में। ऊपर से अगर हम देखते, ऊपर अटैचमेंट होती, ऊपर से अगर हम देखते तो यहाँ पे होता राइट और यहाँ पे होता लेफ्ट। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में वो सब देख लेंगे। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे प्लस dt दिया है, OH प्लस dt है और राइट साइड है, प्लस dt राइट साइड क्या आएगा, बिलो प्रोडक्ट, प्लस dt राइट साइड बिलो प्रोडक्ट, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, ये हो गया सेकेंड। अभी थर्ड में क्या लिया है, OH। ओके, यहाँ पे माइनस dt है, इसमें माइनस dt। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से अलिलिक पोजीशन देखनी है। अलिलिक पोजीशन कौन सी है, ये OH यहाँ पे, ये अलिलिक पोजीशन है, यहाँ से अटैचमेंट है। तो हम कौन सी साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। हम कौन सी साइड से देखेंगे, अभी इस साइड से देखेंगे। इस साइड से देखने के बाद क्या हो रहा है कि ये साइड लेफ्ट हो रही और ये राइट। तो लेफ्ट साइड यहाँ आ गए, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड माइनस dt, लेफ्ट साइड माइनस dt, प्रोडक्ट क्या आता है, बिलो, प्रोडक्ट इज बिलो। मतलब क्या होगा, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बिलो। तो ये एज इट इज। ओके, यहाँ पे मिथिल ग्रुप और यहाँ पे इपॉक्साइड बिलो साइड में फॉर्म होगा। ओके, इपॉक्साइड कहाँ आ रहा है, बिलो साइड। हो गया थर्ड वन। अभी फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में क्या है, यहाँ पे OH और माइनस dt, माइनस dt है, माइनस dt और पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे अटैचमेंट है, ये CH2OH, मतलब जहाँ पे अल्कोहल है उसकी अटैचमेंट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो हम कौन सी साइड से देखेंगे, ऊपर की साइड से। ऊपर की साइड से अगर हम देखते हैं, अगर इसे हम ऊपर की साइड से देखते हैं तो ये साइड आती है राइट और ये साइड आती है लेफ्ट। तो इसमें ये साइड हो गई OH की, तो क्या आएगा, लेफ्ट राइट साइड आएगा, राइट। तो राइट साइड माइनस dt, राइट साइड माइनस dt, प्रोडक्ट इज above, above means which product is obtained. Okay, so there is OH and above product. Okay, ये हो गया। अभी हम अगर देखते, हमें क्या लगता है कि यहाँ से है ना, तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पे OH है तो हम क्या करेंगे, ये राइट साइड आ गया। ओके, अगर यहाँ पे OH है तो हमें क्या लगेगा कि ये लेफ्ट साइड आ गया, पर वैसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, अटैचमेंट देखते हैं, यहाँ से है ना, इसमें कैसे है, यहाँ से है, यहाँ से अटैचमेंट देखनी होती है। ये यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट है, तो जहाँ से अटैचमेंट है उसकी साइड से हम देखेंगे। यहाँ से अटैचमेंट है तो इसकी साइड से देखेंगे, राइट साइड पे OH आता है। यहाँ पे अटैचमेंट है तो हम इसकी साइड से देखेंगे तो इस साइड पे OH
OH आता है। तो ये भी हो गया राइट और ये भी है राइट, दोनों राइट है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये तो इस साइड में है और ये तो इस साइड में है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो हमें देखना कौन सी साइड से, उस पर वो डिपेंड करते हैं कि हम इस साइड से देख रहे हैं। तो इस साइड से देखने पे ये राइट होता है, इस साइड से देखने पे ये राइट होता है। अगर ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? ये लेफ्ट में। अगर ऐसा और यहाँ से दिया है तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर से देखने के बाद लेफ्ट में आएगा। ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट, ये राइट होगा। ओके, देखना कहाँ से है वो पता चल गया थे तो एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। अभी ये हो गया फोर्थ वन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। एग्जाम्पल नंबर 5। 5 में क्या दिया है? प्लस डेट दिया है। प्लस डिप्ट दिया है, प्लस डिप्ट मतलब डाई आइसोप्रोपिल टार्टारेट, डाई आइसोप्रोपिल टार्टारेट। तो क्या करना है अभी हमें? ये बाकी का एज इट इज लिखना है और देखना है कि पोजीशन कौन से, अटैचमेंट कहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे अटैचमेंट है, तो यहाँ से हम देखेंगे राइट। यहाँ से देखने पे क्या हो रहा है? ये OH राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में OH है, राइट साइड में है और प्लस DT, ये भी एक कायरल रिएजेंट है। जैसे कि डेट कायरल रिएजेंट है, ये भी कायरल रिएजेंट है। ये भी क्या करता है? स्टेरियो केमिस्ट्री डिफाइन करता है प्रोडक्ट की। तो राइट साइड प्लस DT, राइट साइड प्लस डिप्ट, तो क्या आ रहा है? प्रोडक्ट बिलो। स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट इज बिलो। ओके, अभी सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं। सिक्स्थ में क्या दिया है? इस तरह से स्ट्रक्चर दिया है। ये जो मोइटी दी गई होती है उससे हमें कुछ नहीं है लेना देना, हमें सिर्फ क्या करना है? एलिलिक पोजीशन और OH देखना है। ओके, तो इस वाले में क्या करना है? माइनस DT दिया है, माइनस DT। तो इस वाले में OH कहाँ से अटैच है? इस साइड से। तो हम कुछ साइड से देखेंगे, उसके नीचे के, जहाँ से OH अटैच होता है उसके नीचे के साइड से हम देखते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद क्या पता चलेगा कि ये कौन सी साइड में आता है? राइट साइड में आता है। ओके, राइट साइड में होने के बाद इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी? राइट में OH है, राइट में OH, तो माइनस DT देख रहे हैं, राइट माइनस DT। प्रोडक्ट स्टेरियोकेमिस्ट्री इज which stereochemistry is present। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? वेज बॉक्साइड फॉर्म होगा। माइनस साइड माइनस DT राइट साइड। ओके, माइनस DT राइट साइड क्या आ रहा है? वेज प्रोडक्ट आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है, इसके बाद एक this is a different example, and in this example there is two unsaturation is present, two unsaturation present from these two. We just have to look on the allylic OH, मतलब जहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है। यहाँ पे अल्कोहल है ही नहीं तो ये हम नहीं देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे? इस वाले डबल बॉन्ड पे देखेंगे। तो यहाँ पे अटैचमेंट कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है। तो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ हो गया? राइट में। राइट, और DT कौन सा दिया है? प्लस DT, प्लस DT है और राइट में OH है। प्लस DT राइट में OH है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी? बिलो। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज बिलो द इपॉक्साइड। ओके, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम आगे के एग्जांपल देखते हैं। एट में क्या दिया है?
and plus dip. Date, dip, same. There is position of OH is at right side. Right side है. Right side position of OH and plus DT. Plus DT right side below product. Plus DT right side below product. Minus DT right side above product. Okay. 9 plus. NC6H17 OH and plus DT plus DT. अभी यहाँ पे क्या है, ये सब दिया है डबल बॉन्ड तो OH कौन सी साइड से देखेंगे हम, यहाँ पे तो ये जो R ग्रुप है ये प्रेजेंट है, यहाँ से हम नहीं देखेंगे, फिर यहाँ से हम नहीं देखेंगे, हम कौन सी साइड से देखेंगे जहाँ पे OH के अटैचमेंट है। इस साइड से देखने के बाद क्या हो रहा है कि OH राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड OH प्लस DT अगेन below the product. OH here NC6H17. Okay. प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे below the epoxide. Okay. ये हो गया 9th one. Now 10th one. इसमें क्या दिया है, C10H19 and OH minus DT है और यहाँ की पोजीशन देखिए अभी, अगेन इट इज एट राइट साइड। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो OH कहाँ से आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड माइनस DT above product. Stereochemistry of the product is बेज, मीन्स यहाँ से इस तरह से इपोक्साइड फॉर्म होगा। ओके, नाउ 11th one, C5H11. Now here OH plus DT plus DT C5H11 यहाँ पर भी दो डबल बॉन्ड दिए हैं, लेकिन हम कौन से डबल बॉन्ड की तरफ देखेंगे जहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, सो इपोक्साइड का फॉर्म होगा यहाँ पे, यहाँ पे इपोक्साइड फॉर्म होगा। अभी क्या देखना है कि साइड कौन सी साइड में OH है, तो हम कौन सी साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट के साइड से अगर हम देखते, देखो यहाँ से अगर हम देखते तो ये कहाँ जा रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो राइट साइड OH हो गया, राइट साइड OH एंड प्लस DT, राइट साइड OH प्लस DT बिलो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज बिलो। ओके, 11 हो गया। नाउ 12th एग्जांपल, OH एंड यहाँ पे है ट्राइमिथिल सिलेट माइनस DT यहाँ से सिलेन ग्रुप है तो हम यहाँ से नहीं देखेंगे, जहाँ से OH ग्रुप है हम वहां से देखेंगे। तो इस साइड से देखने के बाद क्या होता है, ऊपर से आ रहा है ना, तो ऊपर से देखने के बाद ये कौन सी हो गई, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में हमारा OH ग्रुप है, राइट साइड में OH ग्रुप है, राइट साइड माइनस DT क्या आएगा, प्रोडक्ट वेज Me3 वेज प्रोडक्ट। ओके, राइट साइड माइनस DT अबव प्रोडक्ट, राइट साइड माइनस DT अबव प्रोडक्ट।
Okay. Now this is our last example. NC8H17 and OH. अभी इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे फिर से एलिलिक पोजीशन का। एलिलिक पोजीशन यहाँ पे, अटैचमेंट कहाँ है, OH CH2CH यहाँ पे है। तो हम इस साइड से ना देखते हुए इस साइड से देखेंगे। इस साइड से देखने के बाद क्या हो रहा है, इस साइड से देखने के बाद OH कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड OH एंड प्लस DT, प्लस DT, left side OH plus DT, left side OH plus DT, product is above, means which, stereochemistry of product is which. Which product, okay. So here our lecture is over. If you have any doubts about this lecture, then comment me in comment box, and if you like this lecture, then like and subscribe.